in this video I'm going to cover figures of speech part 2. Part 1 I have already covered. You will find my video on part 1 on my channel Learn with BS. Okay, in figure of speech part 1 I had covered simile, metaphor, personification, alliteration, repetition, hyperbole, synecdoche, paradox, interrogation, transferred epithet, tautology, euphemism, onomatopoeia, climax, anticlimax, antithesis, inversion, apostrophe, exclamation. These 20 figures of speech I had covered in part 1. You will find video on this if you want to have these figure of speeches. Okay, do visit my channel and watch this video. Now in today's video we are going to learn figure of speech part 2. In this part I will be covering, in this video I will be covering figures of speech, metonymy, pun, irony, anaphora, epistrophe, epigram, oxymoron, chiasmus, assonance, laertitis. Okay, these figures of speech I will be covering in today's video. Okay, so let's start with metonymy. Metonymy is a figure of speech. When is it used and how will you identify? When one word represents another. एक word जो है दूसरे के लिए बता रहा है. जैसे कि see for an example, pain is mightier than sword. आपने सुना होगा ये कोट, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड. यहाँ पे पेन जो है, पेन किसके लिए यूज किया है? रिटन वर्ड्स के लिए. पेन रिप्रेजेंट्स रिटन वर्ड्स और स्वॉर्ड रिप्रेजेंट्स मिलिट्री पावर. इसका मतलब होता है कि रिटन वर्ड्स कभी कभी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं लड़ाई करने से. तो पेन हियर इज word which represents written words, sword is a word which represents military power. तो when one word represents another, figure of speech को क्या बोलेंगे? It is metonymy. Okay. One more example for you. My neighbor was just released from the big house. Okay. Big house क्या होता है? Prison, jail. Jail को बोलते हैं the big house. तो the big house here represents prison. Okay. One more example. Can you give me a hand carrying this box up? Now what do you mean hand here? It means can you help me? So hand word is used for help. So when one word represents other, figure of speech is metonymy. One more example for you. It seems like people will do whatever Hollywood says is cool. Okay, यहाँ पे Hollywood is a word which represents film industry. The one word represents another. This is figure of speech is metonymy. Okay, next is figure of speech we are going to learn is pun. Now what is pun? When words with same spelling or sound are used in such a way that they convey more than one meaning. अभी ऐसा कोई एक word होता है जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकती है. ऐसा कोई word यूज़ किया है जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकती है. तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं राइटिंग में, तो ऐसे पढ़ने में मज़ा आता है. इट्स लाइक अ फन. Okay, let me explain you with the help of examples. Have you ever seen a sheet on a river bed? अभी river bed आपको पता है क्या होता है? जो bottom रहता है ना river का या sea का जो bottom रहता है उसको बोलते हैं bed. river का bed. तो bed has got double meaning here. एक होता है हम जिस पे सोते हैं, तो हम जिस बेड पे सोते हैं वहाँ पे बेड शीट लगाते हैं. तो वैसे ही अगर रिवर का बेड है तो आपने वहाँ पे कभी शीट लगाई है? तो like it makes a fun. So bed here has got double meaning which is used to hence figure of speech is pun. Okay. Does the needle ever wink its eye? Needle यानी सुई. अभी needle में जो ये होल होता है, okay, जहाँ पे हम धागा डालते हैं, ये होल को बोलते हैं आई. तो जैसे हमारी आँखें जो है विंक करती हैं, ब्लिंक करती हैं, फड़फड़ाती हैं, तो आपने कभी नीडल की आँख को फड़फड़ाते हुए देखा है? तो नाउ हियर आई हैज़ गॉट डबल मीनिंग. एक होता है विशनरी ऑर्गन, हमारा देखने का ऑर्गन, और ये रहता है सुई का होल. तो आई हैज़ गॉट डबल मीनिंग. सो व्हेन वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मीनिंग, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिनकी एक से ज़्यादा मीनिंग है, तो अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? पन.
वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू, अ बाइसाइकिल कैनॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज टू टायर्ड। अभी बाइसाइकिल अपने आप खड़ी नहीं रह सकती, क्यों? बिकॉज इट इज टू टायर्ड। यहाँ पे टू यानी दो, और अगर हम TOO लिखते हैं जिसका साउंड सेम है, टू टायर्ड यानी बहुत थकी हुई है, इसके लिए खड़ी नहीं रह सकती। तो द वर्ड विच हैव सेम स्पेलिंग और साउंड आर यूज्ड। तो हियर टू टायर्ड जो है वर्ड जिसका डबल मीनिंग है, साउंड सेम है, और इट इज़ यूज्ड इन सच अ वे दैट दे कन्वे मोर देन वन मीनिंग, और वो दे मेक अ फन इन द पोएम और समथिंग। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग है। तो when such words are used, figure of speech is pun. So these are examples of pun. Okay, now let's move over to the next figure of speech, irony. Irony, what is irony? When things happen opposite to what you expect. आपने जो सोचा था, आपके सोचने के हिसाब से नहीं हुई चीज़ें, कोई भी बात, कोई भी इंसिडेंट जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट हुआ, तो फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं आयरनी। Let me help you with the example. A fire station burns down. अभी फायर स्टेशन क्या होती है? जो फायर बुझाने के लिए हम उनको फ़ोन करते हैं, ठीक, और फायर स्टेशन को खुद को ही आग लग गई, तो दिस इज ऑपोजिट टू वॉट यू थिंक। आप सोच ही नहीं सकते कभी फायर स्टेशन को आग लगेगी, तो दिस इज ऑपोजिट टू वॉट यू एक्सपेक्ट। तो इसके लिए दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स। अभी मैरिज काउंसलर क्या होता है? जो लोगों को समझौता कराता है, कुछ हस्बैंड वाइफ की, कुछ कपल्स की आपस में नहीं पड़ती है तो उनका समझौता कराता है, और ये मैरिज काउंसलर खुद ही डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा है। तो लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। सो व्हेन थिंग्स हैपन ऑपोजिट टू व्हाट यू एक्सपेक्ट, जो आपने सोचा था उसके ऑपोजिट हुई थिंग्स, तो एग्जाम्पल इज फिगर ऑफ स्पीच। इसमें क्या है? इस एग्जाम्पल में आयरनी। अ पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स। अभी कोई पायलट है, पायलट को तो हाइट पे ही हमेशा प्लेन उड़ाना पड़ेगा। अगर वो हाइट से ही डर रहा है तो ऐसा तो पायलट हो नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते। तो ऐसा हम कभी सोच नहीं सकते व्हेन थिंग्स हैपन अपोजिट टू व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज एनाफोरा। नाउ व्हाट इज एनाफोरा? Repetition of words or phrases at the beginning of a successive phrases, clauses or sentences. पोएम में, स्पीच में, राइटिंग में कोई अगर आपको पैराग्राफ मिल रहा है बट दो सक्सेसिव लाइन में वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीट कहाँ पे हो रहा है? बिगिनिंग में, तो फिगर ऑफ स्पीच इज एनाफोरा। लेट मी हेल्प यू विद द एग्जाम्पल। सी दीज टू लाइन्स फ्रॉम द पोएम। टू dwell in a human form, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर। अभी ये पोएम की दो लाइन है, दोनों किस वर्ड से बिगिन हो रही है? टू वर्ड से। तो अगर दो लाइन बिगिन हो रही है सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से भी कभी कभी हो सकता है, और दोनों लाइन एक के बाद होनी चाहिए, ऐसे नहीं एक फर्स्ट लाइन एक फोर्थ लाइन, ऐसे नहीं, दोनों लाइन एक दूसरे के बाद में आनी चाहिए, सक्सेसिव लाइन्स। तो अगर ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो दो सक्सेसिव लाइन में सेम है, तो फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एनाफोरा। One more example for you. See these two lines. And rolled it flat and baked it thin as a wafer. Now these are again two lines from the poem. उसने इतना रोल किया जैसे वेफर के जैसे और बेक किया। तो दोनों लाइन जो है बिगिन हो रही है वर्ड एंड से। सो व्हेन टू सक्सेसिव लाइन्स बिगिन विद द सेम वर्ड, फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं? एनाफोरा। दिस इज एनाफोरा एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम में आएगा, लाइंस दी हुई रहेंगी, यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। तो आपको लिखना है एनाफोरा, देन यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन व्हाई इज इट एनाफोरा, बिकॉज सक्सेसिव लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड। फाइन, ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच वी आर गोइंग टू लर्न इज एपिस्ट्रोफे। व्हाट इज एपिस्ट्रोफे? ये एग्जैक्टली ऑपोजिट पहले वाले का। इसमें क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस और सेंटेंसेस। एनाफोरा में क्या था? बिगिनिंग में रिपीट हो रहा है, और एपिस्ट्रोफे में उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, रिपीटेशन होता है वर्ड्स का, वो भी सक्सेसिव लाइन में, बट बिगिनिंग के बजाय कहाँ पे? एंड पे। लेट मी शो यू एग्जाम्पल्स। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल
by the people and for the people. Okay. So the people is repeated in the successive lines. Same words are repeated at the end of the line. Okay. One more example. When I was a kid, I thought as a kid, I understood as a kid, I spoke as a kid. So successive line की end में ये जो है repeat हो रहा है, तो इसको बोलेंगे figure of speech apostrophe. Face the dawn, fear the dawn, own the dawn. Again at the end of the clause, the dawn word is repeated, so figure of speech you can say this is apostrophe. Then next we have epigram. What is epigram? Lines stating general truth and can be used as saying or quotes etc. Epigram closely resemble a proverb. Okay. अभी जैसे आपने देखा इंग्लिश में बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, कोट्स हैं, यानी कहावतें हैं, जनरल ट्रुथ है, जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज सीम्स टू बी ग्रीनर. ऐसे कोई भी प्रोवर्ब हैं, कोट्स हैं कि ऐसे टाइप की लाइंस अगर आ जाती हैं पोयम में तो उनको बोलेंगे एपिग्राम, यानी दोज लाइंस विच कैन बी यूज्ड एज कोट्स और सेइंग्स. तो ऐसी लाइन अगर लिखी गई है तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे एपिग्राम. सी फॉर एन एग्जाम्पल, टू बिलीव इज टू नो दैट एवरीथिंग एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग. ये पोयम की दो लाइन्स हैं. अब ये लाइन्स पोयम में यूज की गई हैं. टू बिलीव इज टू नो दैट एवरीथिंग इज अ न्यू बिगिनिंग. सो दिस लाइन्स कैन बी यूज्ड एज अ कोट, अ सेइंग. अच्छी कहावत है तो इसको हम अच्छी कहावत के रूप में यूज कर सकते हैं. तो अगर ऐसी लाइंस यूज की गई हैं जो प्रोवर्ब करके यूज कर सकते हैं, कोट्स करके यूज कर सकते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या बोलेंगे? एपिग्राम. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस. यानी इट इज लाइक, ऐसी ये लाइंस हैं जैसे कि प्रोवर्ब है. तो ऐसी लाइंस जो प्रोवर्ब के क्लोज में है और विच कैन बी यूज्ड एज कोट्स, so figure of speech is epigram. Okay, one more example for you. If we don't end the war, war will end us. Okay, again एक जनरल ट्रुथ है जो पोएम में यूज किया गया है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम. ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीमोरन. लेट मी टेल यू, ऑक्सी का मतलब होता है शार्प, मोरन का मतलब होता है स्टूपिड. कभी सुना है आपने किसी को बोलते हुए मोरन यानी बेवकूफ पर्सन? ऑक्सीमोरन यानी शार्प, स्टूपिड. तो यानी व्हाट इज ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच? व्हेन कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड, जो एक दूसरे के को कॉन्ट्राडिक्ट करें, ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं सेम लाइन में, तो वी विल कॉल दैट फिगर ऑफ स्पीच एज ऑक्सीमोरन. लेट मी हेल्प यू विद द एग्जाम्पल्स. ग्लास इज फुल्ली एम्प्टी. अभी एम्प्टी है तो फुली वर्ड यूज किया है, फुल्ली एम्प्टी, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, तो दोनों साथ में यूज किए जाते हैं. ग्लास इज फुल्ली एम्प्टी, तो दिस फिगर ऑफ स्पीच वी विल से इज ऑक्सीमोरन. शी इज प्रिटी अगली, सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं शी इज प्रिटी अगली. प्रिटी अगली का मतलब क्या होता है? अगली तो मतलब बदसूरत, बट प्रिटी का मतलब होता है सुंदर. बट जब भी हमको बोलना है बहुत अगली है, बहुत बदसूरत है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं शी इज प्रिटी अगली. तो यानी टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड. तो व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन. दिस इज ओपन सीक्रेट ऑफ अवर लाइफ. अभी सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो गया? तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर यूज्ड, सो फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन. ओके स्टूडेंट्स. Okay, next figure of speech we are going to learn is chiasmus. What is chiasmus? Words or concepts are repeated in the reverse order. अभी यहाँ पे words repeat हो रहे हैं, but कैसे? reverse order में, पहले सीधा फिर उसका reverse. Let me show you example. Never let a fool kiss you or a kiss fool you. पहले क्या लिखा है? a fool kiss you, और reverse order यानी उल्टे ऑर्डर में a kiss fool you. तो जब भी एक ही लाइन में ऑर्डर रिपीट किया है बट रिवर्स में, तो फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड chiasmus. वन मस्ट ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट. अभी ये एग्जाम्पल है, हमको वी मस्ट ईट टू लिव, जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि रहने के लिए खाना चाहिए, यानी ग्रेडीली नहीं खाना चाहिए हमको. तो वर्ड्स आर रिपीटेड
but in reverse order. So figure of speech we will say is chiasmus. Next we have assonance. What is assonance? Words that have similar vowel sound near one another. अभी एक लाइन में आप देखोगे जो बाजू बाजू में वर्ड्स हैं उनमें वावल साउंड रिपीट हो रहा है, सिर्फ वावल साउंड रिपीट हो रहा है, हाँ, नॉट द वर्ड. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. अ हाई राइज इज वन विच राइजेज हाई इनटू द ब्राइट स्काई. हाई राइज क्या होती है? बहुत बड़ी लंबी बिल्डिंग जो स्काई तक जाती है. तो अभी ये जो है आई, अगर आप देखोगे हाई राइज में आई, विच में आई, राइजेज में आई, हाई, इनटू, ब्राइट, सब में आप देखोगे वावल साउंड आई जो है रिपीट हो रहा है. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस. क्या होता है एसोनेंस में? वावल साउंड इज रिपीटेड इन जो बाजू बाजू में वर्ड्स हैं कि उसमें से वावल साउंड रिपीट हो रहा है. वर्ड्स दैट हैव सिमिलर वावल साउंड नियर वन अनदर, एक दूसरे के बाजू में वावल साउंड रिपीट हो रहा है. तो फिगर ऑफ स्पीच इज assonance. A fat cat had a snack. अभी यहाँ पे आप देखोगे फै, ए का वावल साउंड, कैट अगेन ए का वावल साउंड, हैड अगेन ए का वावल साउंड, स्नैक अगेन ए का वावल साउंड. तो वावल साउंड इज रिपीटेड, so it is figure of speech is assonance. Okay, next we have lighter-tease. Figure of speech lighter-tease. Okay, what do you mean by lighter-tease? When speaker attempts to avoid making affirmative claim directly but instead denies its opposite. Okay, what do you mean by this? कुछ सेंटेंस अफर्मेटिव में बोलने के बजाय उसको निगेटिव में बोला जा रहा है. okay? अभी जैसे द आइसक्रीम इज नॉट बैड. आइसक्रीम इज नॉट बैड, इसको क्या बोलना चाहिए था? आइसक्रीम इज नॉट गुड, आइसक्रीम इज नॉट गुड. बट इंस्टेड ऑफ सेइंग इट अफर्मेटिव, स्पीकर क्या बोल रहा है? इसको निगेटिव में बोल रहा है. दो मीनिंग इज सेम बट इवन देन it is he is saying in negative. So such figure of speech is called lighter-tease. Not bad, it should be it's good. Okay, one more example for you. He is not the brightest bulb on the tree. okay, उसका मतलब क्या होता है? he is not smart और he is dumb. तो उसको affirmative में नहीं बोल के speaker is telling it in negative. he is not the brightest bulb. negative में बोल रहा है. तो figure of speech is lighter-tease. okay, it wasn't a terrible trip. Again, if you say, he could have said it was a pleasant trip. But अच्छी ना बोल के it wasn't a terrible trip, इसको negative में बोला जा रहा है. तो figure of speech is lighter-tease. She is not unkind. अभी we could have said she is kind. तो affirmative में ना बोल के इसको negative में बोला गया है. She is not unkind. So figure of speech is lighter-tease. Okay. I hope you understood these figures of speech. Thank you for watching this video. And if you want to reach me, you can contact me on this email ID for any details, etc. Thank you.